dear students. Welcome to Enlight English, and I'm back again with another writing skill for you. And today we'll understand letter writing. Letter writing is a long composition, children, and today I'll discuss the kinds of letters, what is the format, how do you write a letter, what is included in your syllabus for class 12th or for class 11th. So we'll discuss everything. So quickly, without wasting any time, let's get started. So basically, children, as you all know, that letter is a form of written communication, and letters are of two types. One is formal, another is informal. So formal letter includes business letters, letters of complaint, letter to government, official letters, and you can say placing orders, cancelling orders. There are so many, and a number of letters are there. But children, listen to me very carefully. For class 12th, in this board examination, the CBSE has reduced the kinds of letters. So only two types of letters will come in your examination. First is application for job letter, and second is letter to the editor. So only these two letters will come in your exam, and out of these two letters you have to do only one. So there will be choice between the two, and you have to opt only one, and this will be of 5 marks, which you can say the distribution is 2 plus 2 plus 1, which is 1 for format, 2 for content, and 2 for expression, isn't it? So class 12th students should have to study only two kinds of letter, which is application for job and letter to the editor. But for class 11th, all the letters are included, whether it is cancelling orders, placing orders, reply, inquiry, everything is included, children. So today in this video, children, I'm going to explain two letters. First is letter to the editor, and second is for job application. So this video is beneficial for all the classes, especially for class 12 students, because these two are included in their syllabus. So please watch the video, then only you'll be able to understand it more clearly. So as I've already told you that the letters are of two types. First is formal and second is informal. So you have to focus on formal letters, because informal letters now obsolete these days. So before we'll go or move forward, I'll have to tell you some points to remember while writing a formal letter, which is very important, I think. So point number 1, the formal letter is written in formal language, because you're writing a formal letter. आप जब फॉर्मल लेटर लिखते हो तो वो आप किसी अपने रिलेटिव को नहीं लिखते हो, अपने फ्रेंड को नहीं लिखते हो, तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो थोड़ी सी फॉर्मल होनी चाहिए. एंड क्योंकि उस इंसान को आप जानते नहीं हो पर्सनली, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वर्ड्स यू आर यूजिंग और चूजिंग टू राइट. सो ट्राई टू अवॉइड स्टार्टिंग विद आई. हमेशा पर्सनल प्रोनाउंस को हम अवॉइड करते हैं. हम थर्ड पर्सन में ही लिखना ही चाहिए. जब भी हम कुछ लिख रहे हैं, आई हम अवॉइड करते हैं. ये गलत नहीं है, बट हम अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग विद आई. इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 इज डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस. हमें कॉन्ट्रैक्शंस को यूज नहीं करना है. अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब नहीं पता है तो आई टेल यू दैट कॉन्ट्रैक्शन इज, जैसे अगर हम लिखते हैं डू नॉट को हम डोंट लिख देते हैं, तो ये उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. जब हम किसी शब्द को छोटा बना देते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक है. तो आप अवॉइड कीजिए. जैसे अगर आपको लेटर में कहीं शुड वो डोंट लिखना है, डज नॉट लिखना है, तो आप पूरा डज नॉट लिखें. आप डोंट या फिर डजंट ना लिखें. क्लियर. पॉइंट नंबर 3, यूज पैसिव वॉइस वेयर एवर पॉसिबल. कोशिश करें कि आप अपने लेटर में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा करें. पॉइंट नंबर 4 इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन, एंड इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. बी पोलाइट एंड पॉजिटिव इवन इफ यू आर राइटिंग अ कंप्लेन. दो आप बहुत एजिटेटेड हैं, आप बहुत अग्रेसिव हैं किसी इशू पे, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको गुस्सा है, बट आपको ये हमेशा याद रखना है, आप भले ही कोई कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, मगर जो वहाँ पर जो उस लेटर को रिसीव कर रहा है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, रिमेंबर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ योर लेटर इज अ ह्यूमन बीइंग. जो वहाँ पर एडिटर है या जो भी पर्सन वहाँ बैठा है, ही इज नॉट देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम.
Newspaper is only a medium to publish your article or your letter or whatever content you are giving. So केवल वो एक मीडियम है, तो आप उससे ये कतई उम्मीद ना करें कि वो पर्सनल इंडिविजुअल ग्रज मत निकालें. आप उससे ये मत कहें कि आई वॉन्ट द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. नो, ही इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ही विल ओनली कन्वे योर प्रॉब्लम थ्रू हिज न्यूज़पेपर. क्लियर? Every section of the letter begins on the left hand side. Provide adequate space between the sections and paragraphs. इसका जो फॉर्मेट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, देन यू हैव टू राइट डेट, देन यू हैव टू राइट द एड्रेसी का जो एड्रेस है वो लिखना है. तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं. सो यू हैव टू गिव अप्रोप्रिएट स्पेस. और मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट, मतलब आपकी हैंड राइटिंग अगर ब्यूटिफुल नहीं है तो ट्राई टू राइट ना एकदम साफ साफ लिखने की कोशिश करिए, दूर दूर लिखने की कोशिश करिए, जिससे आपकी राइटिंग एटलीस्ट नीट रहे. ट्राई टू राइट नीटली. ओके. पॉइंट नंबर 6, कीप इट टू द पॉइंट. हमेशा बहुत ज़्यादा, जैसे लेटर इज अ लॉन्ग कॉम्पोजिशन, दो वी हैव टू राइट 120 to 50 words, 120 to 150 words, sorry, but whatever you are writing it should be relevant. आपको irrelevant चीज़ें नहीं लिखनी है, to the point ही काम करना है. कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है. So now quickly move to our first letter, which is letter to the editor. जैसे कि मैंने आपसे बताया कि now CBSE has reduced the marking scheme. Earlier it was of 6 marks, now it is of 5 marks. And the minor distribution I've already told you, 1 plus 2 plus 2, which is FCE, format, content plus expression. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. आपको कभी भी लेटर में जो फॉर्मेट है इसमें कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं होगा. यहाँ बीच में हो सकता है, मगर इस लाइन के एंड में आप कभी भी कोई फुल स्टॉप या कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है और सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद थोड़ी सी एक लाइन की जगह छोड़नी है. फिर आपको डेट डालनी है. डेट का फॉर्मेट मैं कई बार बता चुकी हूँ, मगर अभी जो लेटर आएगा एक सैम्पल भी आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो वहाँ पर आप डेट का फॉर्मेट देख लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद फिर यू विल लीव वन लाइन एंड यू विल राइट द रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जो इस लेटर को रिसीव करेगा. ध्यान रखिएगा, टू इज ऑब्सोलीट. यू विल नॉट राइट टू द एडिटर, स्ट्रेट अवे यू विल राइट द एडिटर. एंड द का टी जो होगा दैट शुड बी कैपिटल, एडिटर का ई शुड बी कैपिटल, जो आप लोग ज्यादातर स्मॉल ही लिख देते हो. ठीक है. इसके बाद just after the receiver's address again you will leave one line and you will from the next line you will write the subject be to the point होना चाहिए. उसमें उसको बहुत लंबा नहीं लिखेंगे. जैसे आपको जो भी चीज लिखनी है उसको क्लियरली एक लाइन में डिफाइन कर देंगे. ऑलराइट. अब इसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर में आपको 3 पैराग्राफ, मैं हमेशा कहती हूँ कि यू विल हैव टू राइट 3 पैराग्राफ. फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्टरी पैरा, सेकेंड इज योर इलेबोरेशन और मेन बॉडी जिसको हम कहेंगे, जिसमें आप अपना पूरा प्रॉज एंड कॉन्स बताएंगे, जो इशू है उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आप पैरा को कंक्लूड करेंगे, जो कि आपका 3rd पैराग्राफ होगा, जिसको आप कंक्लूड करेंगे. कंक्लूड इट विद अ होप, वार्निंग और वट एवर यू फील लाइक, आप उस तरीके से कंक्लूड करके और लेटर को खत्म करेंगे. लास्ट में आप योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, योर्स ओबीडियंटली सिर्फ तब लिखेंगे व्हेन यू आर राइटिंग लेटर टू द प्रिंसिपल और योर टीचर. इसके अलावा कोई भी बिजनेस लेटर आप जब भी लिख रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू राइट योर्स ओबीडियंटली बिकॉज यू आर नॉट ओबीडियंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. यू विल राइट योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, एंड योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, योर्स ऐसे ही लिखा जाता है. इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, नाम के ऊपर अपना सिग्नेचर करेंगे, एंड डेजिग्नेशन अगर आपको लगता है नेसेसरी है या फिर क्वेश्चन में पूछा गया है तो यू विल राइट योर डेजिग्नेशन, अदरवाइज लीव इट. सो आई होप दैट द फॉर्मेट इज क्लियर. आपको फॉर्मेट क्लियर होगा. सब्जेक्ट कैसे लिखना है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आपको पुअर ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में लिखना है तो आप सिंपल लिखो पुअर ट्रैफिक रेगुलेशन इन द पार्क लेन चेन्नई.
जो भी जगह है। तो एक लाइन में ही अपना सब्जेक्ट को कंक्लूड करो। अब हम आते हैं कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू आर राइटिंग लेटर टू द एडिटर, यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। इधर आप आई से स्टार्ट करने की जगह अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो जो आपका मुद्दा है एक तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जो डिस्कशन रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो आप जब भी स्टार्ट करोगे तो इसी तरह स्टार्ट करोगे। पहला 3 मैंने दिए हैं, इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तीनों ही अट्रैक्टिव लगेंगे। ठीक है। Through the esteemed columns of your newspaper, I wish to bring to the notice of the concerned authorities। हमेशा concerned authorities के लिए आप ये नोटिस में लाना चाहते हो। आप एडिटर को नहीं जगाना चाहते हो, आप सारे लोगों को जगाना चाहते हो जो इस मुद्दे से रिलेटेड है। जैसे अगर ट्रैफिक का इशू है तो वहाँ के लोग उसको करेंगे, बैंक से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो बैंक वाले इसको जाने, इस वजह से आप उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो हमेशा, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप अपना आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हो, लेटर पब्लिश करवा रहे हो, तो हमेशा एस्टीम्ड कॉलम वो हमेशा जो स्टार्ट करोगे तो थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि जो अथॉरिटी हैं उनका ध्यान इस तरफ आए। तो दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन इज वेरी गुड और जनरली ये यूज किया जाता है। और अगर आप पहली लाइन थोड़ी सी अट्रैक्टिव लिखना चाहते हैं तो आप ये एक्सप्रेशन जरूर यूज करें। सेकेंड, दिस इज विद रेफरेंस टू समथिंग दैट आई केम अक्रॉस वाइल। मतलब ये उसके बारे में है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, चाहे वो आप कह सकते हो ट्रैफिक होल्डिंग हो या कैटल स्ट्रे हो या कोई एक्सीडेंट हो आए दिन, क्योंकि बिकॉज ट्रैफिक रूल्स नहीं है, दैट इज वाई सो मेनी एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग। आपके सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके बारे में आप कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहते हो। हाँ, तो थर्ड एक्सप्रेशन इस तरह से भी लिख सकते हो कि दिस इज वेरी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग and we regret to inform you that the आप कह सकते हो the quality is not good, किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या facilities are not good in our area, या कोई भी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बहुत शॉकिंग और डिस्टर्बिंग लग रही है। तो ये 3 एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं लिखने के, बट मैंने आपको कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस आपके साथ डिस्कस किए जो आप इजीली यूज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, आई ऑलवेज यूज टू से बी पोलाइट एंड फॉर्मल। पोलाइट हमेशा रहिए, एंड लेटर लिख रहे हो चाहे कुछ भी लिख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में भी आपको हमेशा पोलाइट रहना जरूरी है। बी पोलाइट एंड फॉर्मल। डिस्क्राइब योर ओपिनियन क्लियरली। क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस, आप कन्वे क्या करना चाहते हैं ये पता चलना चाहिए। अगर कोई इसमें फ्लॉ नहीं होना चाहिए, कोई इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डू नॉट आस्क द एडिटर टू रिजॉल्व द इशू। कभी भी एडिटर से मत कहिए कि भाई हमारा जो इशू है वो सॉल्व कर दीजिए, नहीं कहने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप पोल्यूशन पे कह रहे हैं, पोल्यूशन अ मेजर कंसर्न, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो आप स्टार्ट जैसे करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन with reference to a report claiming Delhi to be the most polluted city in the world। तो ऐसा कोई इंट्रोडक्टरी चीज दे करके आप बताएंगे, कोई ऐसी चीज आप फैक्ट्स आपको ऐसे प्रेजेंट करेंगे जो आपका इंट्रोडक्टरी पैरा बन पाएगा। क्लियर। इसके अलावा आपका जो सेकंड पैराग्राफ आएगा आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज अ मेजर कंसर्न फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल ऑफ दैट द पोल्यूशन लेवल्स ऑफ आर मटीरियलिस्टिक सिटी हैज इंक्रीज्ड by a huge margin, and I'm personally shocked, and this is really shocking for me and shocking for everyone reading this report by WHO, and this is something which if not dealt with immediately would result in an increase in many diseases, and if we will not follow still if will not become vigilant, will have to face the consequences sooner or later। इस तरीके से आप अपने मुद्दे को एलैबोरेट करेंगे। देन लास्ट में जब आपने प्रॉस बता दिए, कॉन्स बता दिए, सोल्यूशन दे दिए, लास्ट में आप उसको कंक्लूड करेंगे कि आई वुड फील ग्रेटफुल इफ दिस इशू इज हाईलाइटेड अप्रोप्रिएटली एंड द मासेस कम टू नो अबाउट इट। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो द मासेस कम टू नो मोर अबाउट इट। It is not only the responsibility of the government,
but also we as a responsible citizen need to take steps to reduce pollution. तो आप ये चाहते हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि एडिटर को प्लीज सॉल्व करो हमारी प्रॉब्लम, आप ये कह रहे हो कि मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो मेरी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी ये प्रॉब्लम है, वो सबके साथ, सबके पास जाए, सब तक पहुंचे, और जिससे कुछ हद तक जो पोल्यूशन है वो कम हो सके. ठीक है, जैसे मैंने बताया, रिमेंबर दैट द न्यूज़पेपर इज ओनली द मीडियम टू एड्रेस द इशू. आई होप इट इज क्लियर. कम एक सैंपल हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक सैंपल डिस्कस कर लेते हैं लेटर टू द एडिटर का. तो आई एम रीडिंग इट आउट, सो इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. Lack of job opportunities in the rural areas is forcing people to migrate to cities. Every big city thus has a number of slums in it. Life in these slums is miserable. Write a letter to the editor of a newspaper on how we can improve the living conditions of these slums. You are Karan Karuna, M114, Mall Road, Delhi. तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो एड्रेस जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे. आपने देखा होगा इस एड्रेस के बाद मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, फिर मैंने यहाँ पर डेट लिखी है. डेट पैटर्न आप देख लीजिए बहुत ध्यान से. या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 अगस्त 2020, और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. वेट, हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 10 अगस्त अपॉस्ट्रोफी 20. मतलब दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं. तो मगर यही दोनों फॉर्मेट आपको लिखना है. ठीक है, अब आपने देखा मैंने बस मेरा जो पंक्चुएशन था वो सिर्फ एक डैश यहां पे आया और यहां पर कॉमा आया क्योंकि यह बीच में है. ठीक है, मुझे लेकिन माल रोड के बाद यहां मैंने कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया और दिल्ली के बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया. तो यू डोंट हैव टू पुट अ फुल स्टॉप देयर और पुट अ कॉमा देयर. इन बिटवीन इफ इट इज नेसेसरी यू शुड add up, otherwise you don't have to put any punctuation mark at the end. अब जैसे यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया बिकॉज दैट वाज नेसेसरी, ये नेसेसरी था, मगर इसके बाद मैंने डॉट नहीं लगाया. फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है. अब जिस एडिटर को हम भेज रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को हम भेज रहे हैं, क्वेश्चन में अगर मेंशन है किसी न्यूज़पेपर का नाम तो राइट दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स नेम. इफ इट इज नॉट मेंशन, राइट एनी न्यूज़पेपर्स नेम. इफ योर नेम इज मेंशन, if any name is mentioned in the letter, write the same name. If name is not mentioned in the letter, write X, Y, Z, but do not write your own name. आप देखो यहाँ पे टू नहीं है. The editor, the Hindustan Times, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली, पिन कोड. आप पिन कोड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और नहीं तो कोई भी इमेजिनरी पिन कोड आप लिख सकते हो. देखो यहाँ भी कहीं कोई पंक्चुएशन नहीं है. द एडिटर के बाद ऐसे कोई कॉमा वगैरह नहीं है, कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है कि जो एडिटर है वो सर है कि मैम है, अगर आपने कभी गए हो, विजिट किया हो तो ठीक है, वरना डियर सर और मैम ऐसे लिखते हो, या सिर्फ आप डियर सर भी लिख सकते हो. और यहाँ पे रिस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज जब भी हम अब जरूरी नहीं है कि आप इस समय आप बच्चे हो, बट जरूरी नहीं है जो जिस एडिटर को आप लेटर लिखोगे आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, वो हो सकता है आपसे छोटा भी हो सकता है और आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, तो हम वहां पे रिस्पेक्टेड नहीं लिखते हैं. अब जब हमारा ये तीनों चीज खत्म हो गया, मतलब एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, नीड टू इंप्रूव लिविंग कंडीशंस इन द स्लम. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक लाइन में आपने लिख दिया कि हमें इंप्रूव करने की जरूरत है. क्या इंप्रूव करने की जरूरत है? लिविंग कंडीशंस इन द स्लम. ये हमें इंप्रूव करने की बहुत जरूरत. इसके बाद हम आएंगे, जैसे ही हमने लिखा डियर सर एंड मैम, अब हम आएंगे अपने इंट्रोडक्शन पे. देखो इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्रेशंस आपको ऑलरेडी बता के रखे हैं. तो हाउ विल यू स्टार्ट? थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर डेली, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द मिजरेबल लिविंग कंडीशन इन स्लम्स. यहाँ पर आपका ये इंट्रोडक्टरी लाइन खत्म. यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म. इसके बाद आपकी मेन बॉडी शुरू होगी. इंट्रोडक्शन में बस आप एक मुद्दे को डिस्कस बहुत इलेबोरेट करके नहीं, मुद्दा क्या है ये आपको बताना है.
through the columns of your esteemed newspaper, comma, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities toward the miserable living conditions in slum. ये आपने बता दिया. अब ये आपकी मेन बॉडी. अब यहाँ मेन बॉडी में आप उसके प्रॉस बता दीजिए, कॉन्स बता दीजिए, क्यों लोग माइग्रेट कर रहे हैं. बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, दे आर लिविंग इन रूरल एरियाज, they have lack of all the facilities, they are moving to big cities and they are living in slums miserably because it's dirty, it is narrow, they don't have their own identity. So many things आप वहाँ पे elaborate करके discuss करिए कि India is growing by leaps and bounds in every sector. However, you know, the slums are in same condition, no improvement at all. A country's growth, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इसमें include कर सकते हैं. कैसे सैनिटाइज करना चाहिए, कैसे शेल्टर मिलना चाहिए, किस पर हमें ज़्यादा रमेजिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे. जब आपने ये मेन बॉडी लिख दी, लास्ट में आपने कहा कि ऑल दीज थिंग्स शुड बी सॉल्व्ड बिकॉज दे आर लिविंग मिजरेबली. लास्ट में आप कंक्लूजन एक होप के साथ करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट पीपल लिविंग इन द स्लम गेट बेसिक अमेनिटीज. People should be made aware of the existing job opportunities in rural areas. इस तरीके से आप बताएंगे कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए. एंड जब ऐसा होगा देन ऑल्सो आप लास्ट में ये कर सकते हैं, if this happens only when the slum dwellers also get the basic necessities, and then only the nation be said to have truly progressed, because it's very important to give them basic amenities, then only जो factual growth हम कहते हैं इंडिया की, वो तभी होगी. So I hope ये इससे आपको, इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया आपको किस तरह लिखना है. आपका देखिए नाम भी दिया हुआ है, आपका एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आपको ये एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पर लिख देना है. इसके अलावा एवरी बिग सिटी ये चीज़ आप अपने लेटर में ऐड कर सकते हो, और यहाँ ये आप अपने इंट्रोडक्शन में भी ऐड कर सकते हो. जैसे आपने थ्रू द स्टीम कॉलम खत्म किया, फिर यहाँ लिख सकते हो कि एवरी बिग सिटी हैज अ नंबर ऑफ स्लम्स इन इट एंड लाइव इन दीज स्लम्स इज मिजरेबल. ठीक है, एंड दैट इज वाई द कंसर्न अथॉरिटी शुड हैव टू टेक सम एक्शन एंड दे हैव टू बी अवेयर टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम. इंट्रोडक्शन खत्म, देन प्रॉस कॉन्स और सारी चीजें डिटेल करोगे आप. सो ये जो है आपका देख रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका फॉर्मेट है. डियर सर मैडम तक सब्जेक्ट भी आपके फॉर्मेट में आएगा. ये डियर सर मैट सैल्यूटेशन भी आपके फॉर्मेट का हिस्सा है. आपका कंटेंट प्लस एक्सप्रेशन सिर्फ इतना है, ये इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, 2+2+4 वो 4 नंबर बस इसी के हैं आपके, और 1 नंबर आपका इतना लंबा फॉर्मेट का है, और लास्ट में ये भी आपका फॉर्मेट का ही पार्ट है. योर्स सिंसियरली, आप अगर इफ यू आर अ गर्ल राइट करुणा, इफ यू आर अ बॉय राइट करण. इसका भी 1 नंबर है इस पूरे फॉर्मेट का. सो आई होप दिस लेटर टू एडिटर इज क्लियर. आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत होगी. अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो प्लीज़ डू कमेंट. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट, प्लीज़ एक लाइक दे के जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा. Make sure you watch the full video if you like my effort. So moving on to the next letter, I think this much is enough. So next video में हम discuss करेंगे application for job letter. तो उसके लिए हम just wait for my next video, and till then take care.